કંઠે વિરાજો દાગા ઉછરાવો સવરી ભાષા કંઠે બિરાજો હે દાગા ઉચ્ચરાવો સવડી ભાષા સન્મુખે સરસ્વતી માતા સુધાવાવો મનવાની ભાષા સન્મુખે સરસ્વતી માતા સુધરાવો મનવાની ભાષા કંઠે વિરાજો હે દાદા ઉછરાવો સવડી ભાષા કંઠે બિરાજો હે દાદા ઉછરાવો સવડી ભાષા કાળી જુવન ભાવનો તારા કાળજો અનુભવ તારા તોડી ખુશી લાઉડલી ને કાટા તોડે મન કુવેણ ખાટા પોતે પોતાના જોવા પોતે પોતાના જોવા અવડિયાવાની ને ખાચા અવડિયાવાણી ખાચા કંઠે વિરાજો દાદા ઉછરાવો સવડી ભાષા કંઠે વિરાજો હે દાદા ઉચ્ચરાવો સવડી ભાષા સત્તાની ભાષા દુરુપયોગે સત્તાની ભાષા દુરુપયોગે વપરાટા ઉગાડે કાટા વપરાતા ઉગાડે કાંટા નિર્દોષી વાણી નિમિતા નિર્દોષ વાણી નિમિત્ત સંસારી માધુર શાતા કંઠે વિરાજો દાદા ઉચ્ચરાવો સવડી ભાષા કંઠે બિરાજો હે દાદા ઉચ્ચરાવો સવડી ભાષા ચારિત્ર બળની ઓળખ ચારિત્ર બળની ઓળખ સંચારી નીકળેલ વાચા સંચારે ડેલી વાચા વિચાર ઉચ્ચારની આચારી વિચાર ઉચ્ચારને આચારે વર્તાવો પરમાત્ર શાસ્ત્ર પરમાત્ર શાસ્ત્ર
कंठी विराजुए दादा उच्चरावो सवरी भाषा कंठे बिराजो हे दादा उच्चरावो सवड़ी भाषा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रतिभान जी। जय सच्चिदानंद। ओके, 9 कलमों करेंगे अब। मोनिका नंबर 1। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ ધૈર્યધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે ના દુબાય કે દુબવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધૈર્યધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. खुशी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मने कोई पण धर्मનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. खुशी। જય સચ્ચિદાનંદ। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે અભાવ તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. मोनिका। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધૈર્યધારી જીવાત્માની સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીની ભાષા ના બોલી જાય, ના બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યે એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીની ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. खुशी। જય સચ્ચિદાનંદ। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી, પુરુષ, અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસથી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. खुशी। જય સચ્ચિદાનંદ। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ, જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કે અનુજ દિવ્યા। જય સચ્ચિદાનંદ ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાની, નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. वेरी गुड। प्रेम दादा, श्रीमंत बुलाया, बाढ़ को फॉलो करेंगे। ओके। नमो वितरागाय, નમો નમો વિતરાગાય, नमो अरिहंताणम, નમો અરિહંતાણમ, नमो सिद्धाणम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम, નમો નમો આયરિયાણમ, नमो उवज्जयाणम, નમો વજ્જાયાણમ, વજ્જાયાણમ, नमो लोये सव्व साहुणम,
नमो लोये सब्ब साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमोकारो सर्वपावपणासनो अपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सबल से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन का के योग और अपने आत्मा के उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में आप मुझे अन्य तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप रिपोर्ट में यस नो का क्यों नहीं लिखते हैं? ओके खुशी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसे कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। अच्छा, और आपको भी यस नो लिखने का है। ओके दिव्या, अनुज। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे। फिर भी दिव्या हैं म्यूट, अच्छे, फिर भी सच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू दिव्या बेन, अनुज भाई। ओके ओके, अभी देखो आज का टॉपिक क्या है। हमने तो ये बहुत बोलो से बा सेपरेशन प्रेयर। Ready दादा, हिताक्षी। दादा, we have to do separation prayer. ओ फ्रीज हो गया। ओके दरअसल। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દર્શન જુદો છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દર્શન રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, દર્શન ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. ચિનાય ગુજરાતી। हे सच्चिदानंद, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, तमे जुदा छो, मोनिका हजीरी छे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, तमे रियल छो, कनिका रिलेटिव छे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, तमे परमानेंट छो, कनिका टेम्पररी छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्लीज आपने रिपोर्ट नहीं भेजा है। ओके ओके, तो अभी तक हमने क्या लास्ट वीक किया था। You are wholly and solely responsible for all
yourself. वो प्रदीप दादा ने बहुत बहुत दफा बोला है, try my very best and no excuses. Jack of all trades, master of one. All positivity and nothing like I do not want, no. Okay, तो उसमें से now आपने क्या डिसाइड किया पढ़ाई में बारे में, और भी नियम फॉर बेटर स्टडी क्या करेंगे? और सब्जेक्ट में बात बोलो, नियम ही बोलने का है. ओके, नो इंडिविजुअल. वो आपका भी इतना एक वीक से हम चल रहा था, तो अभी नया नियम क्या करेंगे आपको फॉर बेटर दादा भगवान जैसे बनने का. ओके, मालूम पड़ गया? ओके, इताक्षी बाग, कैन यू हियर? Yes, sir. ओके, बोलो. जय सच्चिदानंद. फॉर स्टडी, अब मैं स्टडी के लिए नियम ये बनाऊंगी कि मुझे हर रोज 1 आवर एक्स्ट्रा स्टडी करना है. ओके, एक ही नियम. फर्स्ट नियम. और सेकंड नियम मेरा ये कि जब भी मेरे म्यूजिक क्लास हो तो तब मैं जब स्कूल से आती हूँ तब एक्स्ट्रा स्टडी करूँ. क्योंकि ये आप ऐसे लिखा है कि ऐसे बोलते हैं? अभी बनाया? अभी बनाया मैंने. तो अभी लिखो, राइट नाउ लिख के हमको भेजो. और ये एवरीडे रिपोर्ट में टॉप होना मांगता है. ओके श्रेया. हाँ, जय सच्चिदानंद. मैंने जो नियम स्टडीज के लिए बनाया है वो है, मैं मेरा वीक सब्जेक्ट के लिए एवरीडे 1 आवर प्रैक्टिस करूंगी और मुझको सब सब्जेक्ट्स में हाई मार्क्स लाने हैं, किसी में लो मार्क्स नहीं लाने हैं. ओके, वेरी एक्सलेंट. खुशी. जय सच्चिदानंद. मेरे स्टडी में नियम ये है कि मुझे हर रोज 1 चैप्टर एक्स्ट्रा स्टडीज के करने हैं. ज्यादा से ज्यादा मुझे एसएस और साइंस का करना है. और मेरा सेकंड नियम ये है कि हर रोज मैं अपना होमवर्क टाइम पे खत्म कर दूं. और अगले थर्सडे मेरी संस्कृत की एग्जाम थी, उसमें मेरे 19 आउट ऑफ 20 आए. वेरी गुड. ये लिखने का ओके रिपोर्ट में. ओके चिनाई. जय सच्चिदानंद. स्टडीज में मेरा पहला नियम ये है कि मुझे जो भी मैं सब्जेक्ट स्टडीज करती हूँ उसके लिए मुझे चार्ट बनाना है, मैं कब कब कितने हार करती हूँ. और मेरा सेकेंड नियम है कि मैं बीच बीच में एक्स्ट्रा ब्रेक्स लेती हूँ, तो मुझे ब्रेक नहीं लेना है. और मेरा थर्ड नियम है कि मैं बिल्कुल भी फ़ोन ना देखूँ. मैं हर रोज़ 10 मिनट्स देख लेती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी फ़ोन ना देखूँ. मेरा फोर्थ नियम है कि मुझे जो भी वीक सब्जेक्ट है जिसमें मैं वीक हूँ उसके लिए मैं एक्स्ट्रा 1 आवर स्पेंड करूँगी. और मेरा फिफ्थ नियम है कि मुझे टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और मुझे 80% अबव स्कोर करना है. इस बार प्री या फिली में मैं मैथ्स में 70% ही थी, अभी मुझे 80% अबव स्कोर करना है. वेरी गुड. करिश्मा, आपने कुछ बनाया है? ओके, बना के मम्मी के साथ पूछ के रिपोर्ट में कल भेजना. आज रिपोर्ट नहीं मोनिका को, मम्मी को difficult है. मम्मी नहीं तो मम्मी इज डिफिकल्ट. खुशी नहीं तो मोनिका. She must show it. मोनिका तो नहीं है तो खुशी को. नहीं, वो खुशी will do it. Will you do it? हाँ. Please do that. और पापा और खुशी और पापा को. ओके Right. ओके खुशी. ओके मोनिका, खुशी दीदी और पापा के साथ बैठ के तीनों बैठ के करने का. हाँ. खुशी, आपने तो भेजा नहीं आज रिपोर्ट. तो हाँ, नियम में आ गया कि नहीं भेजने का? वो भी लिख सकते हैं, वो भी नियम है नहीं लिखने का. प्रदीप दादा बाद में बताएगा वो कौन सा नियम होता है कि मैं नहीं लिखूंगा.
आरुष, तीर्थ, हाँ बोलो खुशी बहन। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम ये था कि मुझे 5 सब्जेक्ट हो तो मुझे 5 आवर्स एक सब्जेक्ट में स्पेंड करना है, 1 आवर एवरी डे। और मुझे उस 1 आवर में 30 मिनट्स तो मुझे एक्स्ट्रा स्टडी कंपलसरी करनी है और मुझे टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और मुझे 70% अबव स्कोर करना है इस बार एग्जाम्स में। तो टाइम टेबल की दीपक दा को भेजा हाँ पर भेजा भेजा है, बनाया है, मेरा कितना मैन नहीं आवर्स नहीं नहीं, गया अभी है। अभी अभी नया सिंपल बनाओ। ओके, ओनली होम स्टडी, वेरी सिंपल बता के दीपक दादा को अरे बोलो। आपने देखा है, वो सिंपल ही है, वो सिंपल भी फॉलो नहीं करती है। ओ ओके, वो तो नियम में और लिखने का, नियम में तो लिखने का नहीं बोला, करेंगे। ओके फाइन। मरकाना, हाँ दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट नियम ये है कि मुझे हर रोज मुझे 2 आवर्स स्टडी करना है, जो मेरे टाइम टेबल में लिखा है। फिर मेरा दूसरा नियम ये है कि मुझे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर कर लेने हैं उस 2 आवर्स में। और मेरा तीसरा नियम ये है कि मुझे इस बार 80 अप लाना है, तो इसलिए इसलिए मैं एक्स्ट्रा स्टडी करूंगा। मतलब अभी लिख के बताना। तो दरअसल 2 घंटे में सब सब्जेक्ट कवर नहीं होते हैं। मुझे बताओ प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? कितने सब्जेक्ट है आपको? 5। 5। 2 घंटे में आप 5 सब्जेक्ट कैसे करेंगे? हाँ तो 2 मैं घंटे टाइम में 120 मिनट्स होते हैं। फिर एक्सटेंड कर दूंगा। नहीं, उसे उसे अच्छा है गिव गुड टाइम और सारे वीक में उसको कवर करो। समझ में आया? हाँ ओके। आरुष, आरुष हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा स्टडी में नियम यह है कि मैं हर रोज मेरा होमवर्क खत्म कर दूं। ओके, एक ही नियम है बनाने का है? हाँ एक ही नियम बनाने का है? वो सोच नहीं, के दूसरा ये मिनिमम 3 होना मांगता है, कल बताना। ओ रिपोर्ट में भेजो। तीर्थ, हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम है स्टडी में, मेरा पहला नियम है कि मेरा मैथ्स कमजोर है ना, इसलिए अब मुझे उसके मैथ्स में वो करना है। नो ऐसे मैथ की बात मत करो। नियम जनरलाइज नियम अच्छा स्टडी के लिए बोलो। ये आपने सुना नहीं, सब बोलते हैं जनरलाइज, किसी ने एक भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं बोला। वो जनरलाइज सब्जेक्ट होना मांगता है टू बी ए गुड स्टूडेंट। ठीक। और मेरा दूसरा नियम है स्टडी में कि मैं हर रोज 4 घंटे पूरे दिन में पढ़ाई करती ओके, बच्चे लोग ये सब प्लीज अभी हम देखने का एवरी डे। ओके, रिपोर्ट में। और देखो किसी ने एक दो ने बताया टाइम, घर का टाइम बनाएगा। ओके, और एक दो ने बोला कि हमको इतना परसेंटेज मांगता है। दूसरे सब कुछ है ही नहीं, गोल है ही नहीं अपने को क्या करने का है। हाँ? वो चलता है, स्कूल जाके वापस आएगा तो चलेगा। ऐसा जरा सोच के अच्छा करो। ओके ओके दीपक दादा। यही सच्चिदानंद। स्टडीज में तीन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, डेली रिवीजन ऑफ जो आज पढ़ा है वो एक बार देख जाने का। समझ में आया? ये पहली बात। आज जो पढ़ाया है वो आपको पढ़ लेना है एक बार। समझ में आया सबको? हाँ कोई इम्पोर्टेंट है?
वो इम्पोर्टेंट है? हाँ, क्यों? क्यों बताओ क्विकली। क्योंकि अब बोलो बोलो। खुशी हाँ, क्योंकि हम रोज का रोज जो पढ़ा है वो करते रहेंगे तो एग्जाम में हमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और वो एक वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन आज जो पढ़ाया अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आपको पता चल जाएगा, उसको क्लियर कर देंगे आप तुरंत ही। समझ में आया? फिर डेफिनेटली एग्जाम में तो उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन फर्स्ट आज जो समझना है ना, वो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया वो अभी पता चल जाएगा आज ही। वो अच्छा है ना? हाँ, प्रिया, करेक्ट। दूसरा, जो वीक सब्जेक्ट है उसके लिए टाइम देना है। जो वीक सब्जेक्ट है उसको टाइम देना है। और तीसरा, आपका जो रेगुलर टाइम टेबल जो है उसको फॉलो करना है। उसमें तो ये सब आ जाएगा, लेकिन ये प्राइमरी फोकस इस पे रखना है पढ़ाई के लिए। रिवाइज एवरीडे रिवीजन, जो वीक सब्जेक्ट है उसको टाइम देना है और टाइम टेबल को फॉलो करो। समझ में नहीं आता है तो पूछो। हाँ, हाँ, पूछने में डर लगता है। नहीं, तो वो करिश्मा को बहुत डर लगता है। नहीं, कभी तो पूछा नहीं है, नहीं तो पूछ लेते ना। हाँ, पूछ लेने का बेटा, हम थोड़ी डांटने के लिए नहीं बैठे, समझाने के लिए बैठे। हाँ, जय सच्चिदानंद। ओके क्या बताया? नंबर 1 क्या बताया दीपक दादा ने? डेली रिवीजन करना। नंबर हमें 2 जो रोज पढ़ा है वो नंबर वीक 2 सब्जेक्ट को टाइम देना है। वीक सब्जेक्ट को टाइम देना है। नंबर 3 टाइम टेबल फॉलो करना है। टाइम टेबल नहीं है तो कैसे फॉलो करेगा दीपक दादा? वो तो मुझे वो खुशी ने भेजा है, खुशी को मैंने करके दिया, बाकी दूसरे लोगों ने भी दिया, दर्शन ने भी भेजा था, इताक्षिबा ने भी दिया था, लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं। तो अभी उसको फॉलो करेंगे ना तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको खुशी मिलेगी ना, नाम भी खुशी है और खुशी भी मिलेगी। अच्छा नहीं है? हाँ, यही सच्चिदानंद। ओके प्रदीप दादा आपने सब सुना। ये बराबर। आज तो ये स्टडी का चला दिन है, कल से हम हेल्थ में जाएंगे। ये आज का ये नियम पक्का हो गया। बोलो। मैं आप लोग को सबको ये पूछना चाहता हूँ, आपने नियम बनाया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब पढ़ाई करोगे तो आपको पूरे पूरा याद रह जाएगा? खुशी, श्रेया, चिना, तो कोई भी आदमी किताब तो पढ़ जाता है, उन्होंने 2-3 लेसन पढ़ लिया, 2 घंटे तक पढ़ा, पढ़ाई किया, वो तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारी एक शक्ति खुली होती है। लेकिन हमें पढ़ाई किस लिए करनी है? बाय इंटरेस्ट, बाय हार्ट कैसे करना है? क्योंकि मुझे याददाश्त नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे बनेगा? ऐसा हो सकता है कि हम पढ़ाई करें फिर भी भूल जावे? ऐसा होता होगा कभी कभी? हाँ होता है। तो क्यों होता है ऐसा? समझ के पढ़ाई नहीं करते। तो अपने को जितना भी काम करो, 1 लेसन करो, 2 लेसन करो, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन मुझे परफेक्ट करना है, बस फिनिश। और वो परफेक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको पता है? कमन बोलो। समझो, मैंने एक पेज पढ़ लिया तो उसमें जो भी कुछ मैंने पढ़ा है वो मुझे याद रह गया, उसको कैसे मैं चेक कर पाऊंगा? मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे जो पढ़ा है बराबर परफेक्ट मुझे याद है?
समझो कम से कम 70%, 75% तो मुझे याद रहना ही चाहिए। तो कैसे आप प्रूव करोगे? इसके लिए क्या करोगे आप? हम खुद ही टेस्ट लेंगे, अपना टेस्ट लेंगे कि हमें याद है कि नहीं। और पकाने जी साहब आपको दिखाएंगे। हाँ? हमें काम करना है, वो बहुत अच्छी बात है। आज आपने निश्चय किया है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ और परफेक्शन के लिए हमारी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर बाद में जो होगा देख लेंगे। पहली बात तो अपनी डेली प्रेयर जो करते हैं, आई बिलीव आप लोग रेगुलरली करते हैं, सब लोग करते हैं ना? हाँ। कब कोई करते हैं? किसी का मिस हो जाता है? हाँ, स्टडी के प्रेयर करता है, होमवर्क करता है, पहले कोई करता है? हाँ। करिश्मा हाँ। डरती है, पिताश्री माँ नहीं नहीं करती करती है, है, वो श्रेया नहीं भूल करती जाती है। है, दर्शन भूल जाता है, तीर्थ भूल जाता है। हाँ, करिश्मा भूल जाती हो ना? याद पिताश्री माँ करती भी हो भूल जाती है। तकरीबन। नहीं, मैं सुबह को भूलती हूँ तो शाम को कर देती हूँ। तो सुबह का खाना नहीं हुआ तो शाम को खा के सो जाते हैं, ऐसा है? नहीं, ये करो ना, ये कितनी अच्छी चीज है। उसका मतलब क्या है, करने से पहले ये हमारा प्रिपरेशन है। स्टडी करने के पहले प्रिपरेशन, स्टडी के बाद हमको टेस्ट लेना है। समझ में आया? हाँ। और उसको क्रैम नहीं करने का, मुख्य पाठ नहीं करना है, जितना हो सके उतना समझना है। ये समझ में आता है? समझेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। एक बार समझ में आया तो भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने क्या बोलते हैं, बाय हार्ट किया या मुख्य पाठ किया तो वो भूल सकते हैं आप, लेकिन समझ में आया हुआ वो कभी भूलते नहीं है। समझ में आया? ये ख्याल में आया? तो उसको हाँ। समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया तो टीचर को पूछो, तो ये बड़ा आसान होगा। पढ़ने से पहले प्रेयर, फिर अपने आप पढ़ते वक्त आपका फोकस बड़ा अच्छा होगा, और पढ़ने के बाद अपना टेस्ट ले लेना है। और पढ़ने का फोकस क्या है? समझना है। लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग। समझ में आया? हाँ। हाँ। फिर आपको इजी होगा, कभी भी आपको पूछेंगे तो आप बोल पाएंगे, कह पाएंगे। समझ में आया? यही सच्चिदानंद। और जो क्वेश्चन है ચીટની प्रदीप હાજરીમાં दादा, કહે છે ને बच्चे, દીપક આનંદજી, प्रदीप दादा, એ ચીટની હાજરીમાં કહે છે ને, એમાં એ આવેલી છે પ્રેયરમાં. હા, ઓકે ઓકે। प्रदीप दादा, हमारे दो क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं हम? ओ पूछो। ओके बच्चे लोग, जब आप पढ़ते तो अपना मोबाइल किधर रहता है? मम्मी के पास। एक मम्मी को देता है, दूसरा मम्मी के मोनिका तो अपने पास रखती है। पास में नहीं रहता स्टडीज के टाइम, मम्मी- किचन में रहता है या फिर रूम में रहता है। मैं बाहर लगी। देखो, पास में नहीं रखने का। और दूसरा, मम्मी को कौन बोल के पढ़ते हैं कि मम्मी मैं अभी आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, व्हाटएवर हम पढ़ने वाले हैं। और मम्मी का परमिशन लेके बैठता है कौन? देखो, ये तू चीज बोलो प्रदीप दादा, ये तो नहीं करते। मोबाइल होता है, मम्मी को नहीं बोलते, तो क्या करेगा अभी? हाँ, तो फिर वो डिस्टरबेंस आएगा ही। मम्मी को सरेंडर कर दो फोन, बोलो पढ़ते वक्त किसी का भी फोन आया तो मुझे बाद में बताना, कोई अर्जेंट नहीं होता है। कुछ ही चलेगा। हाँ। हाँ, तो वेरी गुड। पढ़ाई करने के वक्त आप कैसे बैठोगे? पीछे सपोर्ट लेके बैठोगे, सोते सोते पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे आप? पढ़ाई करने का भी एक सिस्टम होता है। स्ट्रेट बैठेंगे। क्योंकि अगर जो आपने सपोर्ट लिया, पलंग में बैठे और तकिया लिया, तो फिर आपको एकदम आलस आ जाएगी।
पढ़ाई कहाँ करनी है, कैसा बैठना है, वो हर सिस्टम एक एक हमें समझने जैसी है। वो दीपक आनंद जी साहब आपको समझाएंगे। वो जितना सीधा बैठेंगे उतना बहुत अच्छा है, अपने आप आलस भी नहीं आएगी, जो पढ़ेंगे वो अच्छे से याद भी रहेगा, बहुत अच्छा होगा। सबके घर में टेबल और चेयर तो है ना पढ़ने के लिए स्पेशल? अरे रजनी दादा नीचे बैठ सकते हैं फ्लोर पे, हाँ, नीचे भी बैठ बिछाना सकते लगा हैं। के, वो तो सबसे अच्छा है अपना भारतीय बैठक। वेरी गुड। हाँ, वो तो हम ऐसे पलाठी लगा के बैठेंगे ना, तो बीच में सेंटर में बैठ जाने का, ऐसा कुछ नहीं, अगर नहीं तो साइड में बैठ, लेकिन दीवार से दूर, नो तकिया, नो गादी, नथिंग। अरे एक प्रश्न आया मुझे, बोलो। पढ़ते पढ़ते कौन सो जाता है? जो इताक्षिबा सो जाती है, मोनिका सो जाती है, खुशी सो जाती है, दरअसल सो जाता है, आरुषा पढ़ते पढ़ते सोते नहीं है। पढ़ने को बैठे, फिर थोड़ी देर को देखने आए तो सो गए। दूसरा, अगर आपको ऐसा नींद ऐसा आए, कितना होता है? ऐसा कितना होता है? बार बार होता है? कभी कभार। कभी और इसीलिए आप ठीक से बैठेंगे तो इसकी शक्यता बहुत कम हो जाएगी, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। थैंक यू फॉर योर ओपननेस, आनंद जी वेरी साहब, गुड। मैं ये पूछता हूँ कि अगर समझो पढ़ते वक्त नींद आई तो आप क्या करोगे? नींद को कैसे भगाओगे? वो तो सुपर ब्रेन हो गया 11 कर देने का, वहीं पर उसको बोलो कि, करिश्मा चलेगा। लेकिन ये करेंगे योगा, नहीं नहीं, ये तो करते हैं, बहुत बहुत डिसिप्लिन तो वाले नींद बच्चे नहीं हैं। आएगी ना। नहीं, डिसिप्लिन वाले बच्चे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर भी मैं ओवरवाइज होके आपको बता देता हूँ कि हमारे टीचर हमें कहते थे कि अगर आपको पढ़ाई करना है और नींद आती है तो आपको ये जगह छोड़ करके आपको बाथरूम में जाने का, और ठंडा पानी जो होता है मटके में, या उस समय तो कोठी थी वो, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो वो पानी एक लोटा ने सूखे एक जग भर के हाथ में लेके अपनी आंखें खुली रखने की, और ऐसे ऐसे उसको आंख में पानी डालने का, फिर मुंह धो के बराबर एकदम आपके अंदर सर्कुलेशन फेस में ब्लड का शुरू हो जाएगा और एकदम फ्रेश हो जाओगे आप। आपको समझ में आया? हाँ। ये देसी हमको टीचर ऐसे बताते थे। लेकिन नींद आई तो आपको तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको कितना भी 2 घंटे तक पढ़ोगे लेकिन आपका दिमाग काम नहीं करेगा, फिर पढ़ने घुमाते रहोगे लेकिन क्या पढ़ा कुछ पता नहीं चलेगा। बराबर? और क्या पूछना है रजनी दादा? और दूसरा, हाँ बोलो। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो उसी समय हमारी रूम में ज्यादा तक जो अगर कोई नहीं हो तो अच्छा है, लेकिन छोटा घर है तो अपने कुछ नहीं कर पाते। जैसे आवाज आती है, टीवी चलता है, ये चलता है, फिर जो फैन होता है, एसी होता है, उसको कंट्रोल में चलाना है। नहीं तो आपको जो अगर ये फैन ज्यादा चलाया तो फिर आप देखना सुस्ती आ जाएगी। आएगी? आती है? बोलो ना। तो कि बॉडी को कैसे हॉट रखना है, मतलब नॉर्मल, नहीं तो ज्यादा उसको जो इजीनेस आ गया, अनुकूल आ गया, तो फिर आपको पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। इसलिए बैठने की स्टाइल, बैठने की जगह और ये सब सिस्टम साथ में होगी, फिर बाद में आप देखना। दूसरा, जब तक ये मेरा होमवर्क या स्टडी इतना खत्म नहीं होगा तब तक खाना खाने का नहीं, इधर उधर जाने का नहीं, सिर्फ पानी पीने की छूट है। आपको समझ में आया? खुद के पर तो कुछ करना पड़ेगा ना।
आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे तो बताओ। जो आदमी स्टडी करना चाहता है उनका जीवन कैसा होता है, तो के स्वान निंद्रा बक ध्यानम, इतने खाना ऐसा खाने का जो आपको पढ़ाई करनी है तो उस समय सोच समझ के खाना खाने का, नहीं तो जो ज्यादा खाना खा के बैठोगे, बाजू बाजू में नाश्ता लेकर बैठोगे, वेफर खाओगे, ये खाओगे, ममरा खाओगे, फिर बाद में पढ़ने का काम किया तो समझ लेना कि सब घोटाला हो जाए, सब ममरा ही वो चवाना हो जाएगा। समझ में आया? हाँ समझ में आया? विद्यार्थी वही होता है जो अपने लक्ष्य को सिद्ध करना है तो हर तरफ से वो सावधान रहता है। आप समझे? जो मुझे समझ में आया था और हमें जो सिखाते थे वो मैंने आपको बताया। बहुत बढ़िया, जय बहुत सच्चिदानंद। बढ़िया। देखो एक क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है, हाँ बोलो। क्वेश्चन था, मुझे रिक्वेस्ट करना था कि दीपक दादा से कि वो मेरे लिए टाइम टेबल बना सकते हैं। मैं अपना टाइम टेबल क्या बताया? आप मेरे लिए टाइम टेबल बना सकते हैं तो please follow करें। वो तो बना सकते हो ना। आई नीड इंफॉर्मेशन, वो बता दूंगा। ओके, विल टॉक इट ओवर। हाँ ओके, दूसरा किसी को? अव्यय, आप लेट क्यों आते हैं? अव्यय, 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 हाँ आप लेट क्यों आते हैं? कुछ वजह है? वजह नहीं है, को आपको इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट है, वो मैं खेलने गया था, मुझे टाइम का देखो, पता नहीं। रिपोर्ट नहीं लिखने का, लेट आने का, क्या करेगा? आरुष, आपको कुछ प्रॉब्लम है जल्दी आने का? आरुष, टाइम सर? नहीं तो पिताक्षी बा, आपको जल्दी नहीं आ सकते? घर का काम होता है तो दूसरी बात है। ओके, हाँ पिताक्षी बा, आ सकते हैं। आज मैं आज की बात मत करो, जनरलाइज को लो। सब देखो, ये चेन्नई अहमदाबाद वाले सब टाइम से आ जाते हैं। क्यों? जरा सोचना को। ओके, कि जय सच्चिदानंद। एक लास्ट पॉइंट बता दूं रजनी हाँ दादा, बोलो 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 बोलो। आप लोगों के राइटिंग अच्छे हैं? नहीं, बहुत गंदे है। कौन बताया? देखो, आपको खुद की एग्जाम लेनी हो कि मैंने जो पढ़ा हो मुझे याद है कि नहीं, तो आपको एक बार एक पेज पढ़ के फिर बाद वो पेन और कागज लेके जब से वो पढ़ा तब वो लिखते जाने का स्पीड से, फिर बाद में चेक कर लेने का कि क्या कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई, कौन सी चीज में भूल गया, कौन सी लाइन आगे पीछे हो गई। इससे आपको पता चल जाएगा। जो हमें टीचर सिखाते थे वो बात मैं आज ये आपको बता रहा हूँ कि खुद की एग्जाम खुद को लेनी है। टीचर तो लेंगे ही 6 महीने के बाद, साल के बाद, लेकिन हर रोज हमारी खुद की एग्जाम हमें लेनी है जो हमें परफेक्ट स्टूडेंट बनना हो। तो आपको समझ में आया? हाँ लिखने को आता है आप लोगों को? हाँ इनको परफेक्ट होना है, वो हर चीज को वो सुनता है, समझता है, फिर बाद में उस बात पे चलने का निश्चय करता है कि किसी भी प्रकार से लीकेज नहीं चाहिए मुझे।
मुझे परफेक्ट होना है। और दादा भगवान ऐसे थे, आप समझे? मालूम हाँ। पड़ा? बच्चे लोग अभी श्री भाई को पूछे क्या? श्री भाई आपका तो राइटिंग बहुत अच्छा है, कैसे आपका अच्छा हुआ? नहीं नहीं, मेरा राइटिंग तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन जो प्रदीप दादा ने जो लास्ट में बोला ना, मैं भी वही करता था, लिखता था मैं भी जो भी पढ़ा था वो, और फास्ट ही लिखता था उसको जज करने के लिए। तो ये एक बात बहुत हेल्प करती है, जितना लिखेंगे उतना ज्यादा हेल्प करेगा ये। मेरा मेरा भी एक्सपीरियंस है ऐसा ही, मैंने थ्रू आउट लास्ट ईयर तक लिखा है कॉलेज के, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। यस, ओके, राइटिंग तो होना है, इसलिए तो हम रिपोर्ट बोलते हैं लिखने। ओके, जय Yes, सच्चिदानंद okay. भाई। बच्चे लोग थैंक यू श्री भाई।